Ecology. Ecology is made from two words, that is ecos and logos. Okay? Ecos means a home or a place to live in. Logos means study. Basically, ecology means study of our home, study of our place where we live. So where we live, we humans, we plants, animals, where we live, in the nature, in the home of nature. So ecology is the study of home of nature. Okay? We all, humans, animals, plants, insects, birds, reptiles, where we live in the nature. So nature is our home. So ecology is the scientific study of nature, scientific study of our home of nature. Okay, ecology is the scientific study of home of nature. This is a definition. Now, to understand this nature, we have to understand environment. We have to understand this environment. Vatavaran. So, what is the definition of environment? Or what does environment mean? Environment means everything or anything which surrounds an organism. Like me, I'm holding this pen, I'm writing on this board, I'm under this fan, I have a cat also, Lassie. So I'm surrounded by fan, by my marker pen, board, and Lassie, the cat. So this pen, this board, this fan, that Lassie, the cat, all are my environments. These all are my environments. Now, environment can be classified. Environment can be classified into two parts. Everything or anything which surrounds me can be classified into living and non-living. For example, non-living, which is surrounding me, non-living, what are they? First, marker. Second, this board. And third, this fan, which is providing me smooth air. And second thing is living thing. I have a pet cat. Her name is Lassie. So this environment can be classified into two things, living and non-living. So, what is environment? What is the definition of environment? Environment is the sum total of living and non-living things that surrounds us, that surrounds an organism. What does environment mean? Environment definition: sum total of living or non-living things that surrounds an organism. Okay. Now this living and non-living thing both can be termed as biotic and abiotic. Biotics are those who are living. Non-biotic, abiotic are those which are non-living thing. Abiotic which are those who are
non-living thing. So we can term this living and non-living thing. Living can be termed as biotic. Non-living thing can be termed as abiotic. Okay. Now we'll see some examples of biotic and abiotic components. Around 4 to 5 examples we will see, like abiotic and biotic. First we see biotic, very easy examples: green plants, animals, birds, reptiles. These are biotic. They breathe. They breathe. That's why they live, and that's why they are biotic component. And what are abiotic? Non-living things: radiation, air, soil, water. These are abiotic components of environment. Okay. Now, second thing, and one thing I should add, like nature is not static. Our nature is not static. Biotic components are mostly dependent on the abiotic components. What I am trying to say, that green plants cannot survive without air, without soil or sunlight. They can't survive without sunlight. They can't survive without water. Animals, same scenario. They can't survive without air. Even for a minute, they will suffocate and die. So, birds, same case. So, what I am trying to say that biotic components are majorly and totally dependent on abiotic components. But abiotic components doesn't depend on biotic components. They don't have any say with the biotic components what to do. But abiotic components, they exist. Air exists. Before life on the earth, air existed. Land existed. Okay, radiation existed, sunlight existed, water also existed. Okay. So, abiotic component do not depend on biotic components, but biotic components depend on abiotic components. This is a unique point you can add on your mention. You can add in your mains paper that biotic components depend on abiotic component, but abiotic component does not depend on biotic component exclusively. You should add this word exclusively. You should add this word exclusively. It is important to add, because in some cases this is a nature. No, this is a nature. You can't say that this is a definite statement. There is some loophole or exception. So
it is better to add this exclusively word. When you add this exclusively, the checker, the examiner will know that he wants to say this is a definite statement. He wants to put this statement as a definite, but he knows that in geography, environment, in this world, in this life, nothing is static or a very strong statement. Everything is flexible, and everything is dynamic. So anything can happen in this life or world or space or on earth. So let's see the next topic. अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोसिस्टम. मान लो कि हमने इकोलॉजी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया. डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से इकोलॉजी को पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम नेचर को पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम इन्वायरमेंट को पढ़ पाएंगे. तो अब हम डिवाइड करेंगे इकोलॉजी को डिफरेंट सेक्शंस में. तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ये कौन कौन से लेवल्स हैं? सबसे पहले क्या आता है? इंडिविजुअल्स. इसके बाद फिर क्या आएगा? सबसे पहला हमने सेक्शन क्या बनाया? इंडिविजुअल्स. सबको बताऊंगा कौन क्या क्या है ये इंडिविजुअल्स. उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटीज के बाद इकोसिस्टम के बाद बायोम के बाद बायोस्फीयर. अब देखो इंडिविजुअल्स क्या है? मान लो मेरा नाम कुंदन है, ठीक है. अब मेरी स्पीसी क्या है? मेरी स्पीसी है होमो सैपियंस. मेरी स्पीसी होमो सैपियंस है. और होमो सैपियंस का मैं क्या हूँ? एक आम आदमी हूँ, एक इंसान हूँ, सिंगल मैन हूँ. मतलब कि मैं क्या हूँ? इंडिविजुअल हूँ. तो मैं क्या हूँ? कुंदन क्या है? एक इंडिविजुअल है. किसका? किस स्पीसी का? होमो सैपियंस का. होमो सैपियंस का क्या है? ये एक सिंगल इंडिविजुअल. मैं इंडिविजुअल में सिंगल ही होता है, ठीक है. अब कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला दोगे, बहुत सारे कुंदन, राम, लक्ष्मण, सबको मिला दोगे. बहुत सारे जो होमो सैपियंस हैं, बहुत सारे होमो सैपियंस के स्पीसीज़ को मतलब होमो सैपियन एक स्पीसीज़ है, उन्हीं स्पीसीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल्स को तुमने मिला दिया. कुंदन जैसे कुंदन, कुणाल, ऐसे सबको मिलाया. डिफरेंट नाम बता रहा हूँ बहुत. तो ये जो नाम है वो क्या है? वो अपने में एक इंडिविजुअल है. तुमने क्या किया? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कर दिया, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला दिया. वो सभी इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाए? पॉपुलेशन. वो सभी इंडिविजुअल मिलके क्या बनाए? पॉपुलेशन. वो सभी इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाए? पॉपुलेशन बनाए. मिलके क्या बनाए? पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? पॉपुलेशन का डिफिनेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ individuals of same species under a definite area. किसी एक एरिया पे, मतलब कि तुम कोई एक एरिया निर्धारित करते हो कि इस एरिया पे उस होमो सैपियंस के कितने इंडिविजुअल्स हैं.
तो किसकी पॉपुलेशन निकल के आ गई? होमो सैपियंस की पॉपुलेशन निकल के आ गई। आगे बस समझ में। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हम कैसे निकालते हैं? मान लो होमो सैपियंस की पॉपुलेशन निकालना है पटना में, तो जितने भी होमो सैपियन स्पीसीज के, जितने भी होमो सैपियन स्पीसी के इंडिविजुअल्स होंगे, कुंदन, जो कुंदन हो गया, मैं हो गया, मेरे जैसे जितने भी इंसान हैं, उन सबको काउंट करेंगे इंडिविजुअली। तो फिर क्या आएगा? वो पटना का पॉपुलेशन आएगा। किसका? होमो सैपियंस का पॉपुलेशन आएगा। उसी तरह मान लो तुम्हें डॉग्स का पॉपुलेशन निकालना है पटना का, तो मान लो इस गली का एक कुत्ता है कोई, तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल। उसके जैसे सभी इंडिविजुअल्स कुत्ते को क्या करोगे? तुम काउंट करोगे, तब जाके किसका पॉपुलेशन आएगा? डॉग्स का पॉपुलेशन आएगा पूरे पटना का। तो ये पॉपुलेशन आ गया समझ में, इंडिविजुअल समझ में आ गया, पॉपुलेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या आए, कहाँ आएंगे? कम्युनिटीज। कम्युनिटीज में अब कम्युनिटीज़ क्या है? अब कम्युनिटीज़ क्या है? अब मैं देखता हूँ जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे खाने के लिए, खाना खाने के लिए मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? प्लांट्स पे। मैं सब्जी खाता हूँ तो प्लांट्स पे। तो कुंदन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्यों भाई? फॉर फूड, खाना के लिए, फूड के लिए, रहने के लिए मुझे घर चाहिए। घर मान लो लकड़ी का बना हुआ है, तो ट्रीज क्यों चाहिए भाई? फॉर शेल्टर। तो मैं किस पे डिपेंड हो रहा हूँ? प्लांट्स पे, ट्रीज पे। प्लांट्स और ट्रीज पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्लांट्स क्या दे रहा है? खाना दे रहा है, नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। ट्रीज क्या दे रहा है? मुझे घर दे रहा है, घर नहीं होगा तो फिर कहाँ रहूँगा? रही नहीं, फिर बाहर रहना पड़ेगा कहीं जंगलों में। तो मैं किस पे डिपेंडेंट हो गया? प्लांट पे और ट्रीज पे, ठीक है। कुंदन किस पे डिपेंडेंट हो गया? मतलब कि एक होमो सैपियन का इंडिविजुअल, या फिर कह लो पूरी होमो सैपियंस, पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट और ट्रीज पे डिपेंडेंट है, कह सकते हैं। तो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है भाई? प्लांट्स पे प्लस ट्रीज पे, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट्स और ट्रीज भी डिपेंडेंट है किस पे? एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे। देखो कैसे? प्लांट्स को पॉलिनेट करना होता है, तो पॉलिनेट कौन करता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, एनिमल्स हेल्प करेगा प्लांट्स का, किसमें? पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। और प्लांट्स की हेल्प और कौन करेगा? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस में हेल्प करेगा? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज में हेल्प करेगा? तो न्यूट्रिएंट सप्लाई में। प्लांट के रूट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलती है, क्यों, कैसे मिलती है? यही सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करती है, उसको नाइट्रेट्स में उसको तोड़ती है, और उसी नाइट्रेट्स को प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एक तरीके से उनका न्यूट्रिएंट सप्लायर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिकम्पोज करता है वेस्ट मटेरियल्स को। वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होकर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट्स, वाया रूट्स। रूट्स के थ्रू वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करता है, कौन? प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे, किस पे डिपेंड हो गया? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैं ये इसलिए बताया ये चीज कि पॉपुलेशन होमो सैपियंस की थी जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे, पॉपुलेशन प्लांट्स की भी थी जो कि एनिमल्स पे डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए,
तो इस प्रकार से different population of different species are dependent on each other and living in the, that's why they have to live in the same area, इसलिए उनको एक ही जगह पर रहना होगा। ऐसा नहीं होमोसेपियंस यहाँ पटना में रहेंगे तो जहानाबाद में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा और गया में प्लांट्स रहेंगे, ऐसा नहीं, वो एक जगह ही रहना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। इसलिए डिफरेंट पॉपुलेशन एक डिफाइंड एरिया में रहेगी, एक डिफरेंट एरिया में रहेगी और वो एरिया क्या बना लेगा, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन ऑफ होमोसेपियंस, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये सब मिल के क्या बनाएगा, एक कम्युनिटी। यही है कम्युनिटीज, कम्युनिटी, यही है कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, यही है क्या, कम्युनिटीज, ठीक है, यही है क्या, कम्युनिटीज, ठीक है, एक बार समझ में, यही है कम्युनिटीज। अब इकोसिस्टम क्या है? Ecosystem is a combination of different communities and the abiotic components. Abiotic components मतलब कि communities तक तो हमने जितने भी populations थी living beings की, जितनी भी communities थी living beings की, जितनी भी populations थी living beings की, यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ तक हमने communities में ऐड कर लिया, जितने भी populations थी living beings की हमने communities में ऐड कर लिया। बचा कौन? abiotic components। बचा कौन? एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स तो बच गया सॉयल, वाटर, एयर, ये तो हमने इंक्लूड नहीं किया कम्युनिटीज़ में क्योंकि वो लिविंग बींग्स नहीं है, वो एबायोटिक्स हैं। तो इकोसिस्टम में क्या होगा, कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। कम्युनिटीज़ में क्या आ गए, जितने भी पॉपुलेशन, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट वो कम्युनिटीज़ बनाएंगी। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एनिमल्स कह लो उनकी अलग कम्युनिटी बन गई, प्लांट्स कह लो उनकी अलग कम्युनिटी बन गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो उनकी अलग कम्युनिटी बन गई। इन सब का अलग अलग पॉपुलेशन बन गया क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज़। और ये सभी कम्युनिटीज़ किस चीज़ की हैं, लिविंग बींग्स की हैं, लिविंग बींग्स की हैं, सभी जिंदा हैं, बायोटिक्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो कम्युनिटीज़ में हमने किसको इंक्लूड नहीं करा था, एबायोटिक कंपोनेंट्स को, इसलिए इकोसिस्टम में हमने एबायोटिक कंपोनेंट को इंक्लूड करा। इसलिए इकोसिस्टम क्या है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ different communities and the physical environment, different communities plus abiotic component क्या है, physical environment है। abiotic component क्या है, ये physical environment है, ये physical environment, ठीक है, ये इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में अब बायोम और बायोस्फीयर, ठीक है, मैं इधर का मिटा रहा हूँ, या फिर एक मिनट इधर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम ऐड कर रहे हैं इकोसिस्टम में, वो बस नाम मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उस चीज़ को बता चुका हूँ, एक बार फिर से एबायोटिक कंपोनेंट्स को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे इकोसिस्टम में, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, एनर्जी भी एबायोटिक कंपोनेंट है। रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल नहीं होगा तो वाटर कहाँ से आएगा, वाटर, सनलाइट, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में इंक्लूड हो रहे हैं विथ बायोटिक कंपोनेंट्स। टेम्परेचर, हाँ,
एटमोसफेयर, एयर कह लो या एटमोसफेयर कह लो, बात एक है। अब देखो इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटीज प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट। अब कम्युनिटीज में क्या आ गया, सारा बायोटिक कंपोनेंट आ गया। कम्युनिटीज में मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज मतलब पॉपुलेशन, स्पीसीज मतलब लिविंग बींग्स ना, लिविंग बींग्स मतलब लिविंग बींग्स जो जिंदा हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लिविंग बींग्स है। अब जो लिविंग बींग्स का जो कम्युनिटी है, लिविंग बींग्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग बींग्स कहाँ रह रहा है, एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण में रह रहा है, वहाँ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी है, सॉइल है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, लैंड है। जब हम लोग लिविंग बींग्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला देंगे, मतलब हम लोग कॉम्बाइन कर रहे हैं किसको, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। क्या बन जाएगा, मतलब इकोसिस्टम क्या है बाबू लोग, इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इस बायोटिक में क्या आ जाएगा, जो कम्युनिटीज हमने बनाई हैं उन कम्युनिटीज को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उन बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग 3 भाग में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, पहला प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, दूसरा कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, तीसरा डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करता है। कितने हो गए, 3 हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एबायोटिक मैंने यहाँ बता दिया है आपको, एनर्जी, रेनफॉल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के मदद से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज करके ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स बना के खुद भी खाता है, और जो इन्हें खाता है उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली। अब ग्रीन प्लांट्स तो खुद तो कार्बोहाइड्रेट खाए ही, उनके पास आया कार्बोहाइड्रेट्स, प्लस ग्रीन प्लांट्स को कौन खाए, हर्बीवोरस, रैबिट खा लिया, गाय खा लिया, काऊ खा लिया, हर्बीवोरस खा लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स किसके पास गया, गाय के पास भी गया और उस रैबिट के पास भी गया। तो कंज्यूमर में कौन कौन से आते हैं कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कंज्यूमर को। एक प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरस, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो ये भी नहीं कर सकता, प्राइमरी सेकेंडरी भी नहीं कर सकता, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर किसको खाएगा, ये पेड़ पौधा खाएगा, जैसे डियर हो गया, काऊ हो गया, रैबिट हो गया, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये हरा पेड़ पौधा खाएगा, ग्रीन पेड़ पौधे खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाएगा कौन, रैबिट, काऊ, डियर। लेकिन डियर को कौन खाएगा, वुल्फ, भेड़िया खा लिया, तो भेड़िया क्या होगा, वो सेकेंडरी कार्निवोर्स होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खा रहा है। डियर को कौन खाता है, वोल्फ्स, तो वोल्फ्स क्या हो गया, भेड़िया क्या हो गया, अब सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गया। अब भेड़िया को कौन खाएगा, टर्शियरी, शेर कुछ किसी को भी खा सकता है। तो अगर शेर भेड़िया को खाता है, मतलब शेर किसको खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है, तो शेर क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर, शेर क्या हो गया, टर्शियरी का लायन क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब आता है डिकम्पोजर मतलब इसको हम लोग डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, तो डेटर मतलब क्या होता है, डिटरी मतलब क्या होता है, डेटरी मतलब कि डेटरस मतलब क्या होता है, डेटरस मतलब होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स। अब जो पेड़ पौधे जो मर गए हैं, तो उनकी जो रिमेनिंग जो बचती हैं, उसको क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स भी कहते हैं या डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, दोनों कहते हैं,
ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, डिकम्पोजर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, एंथ्रोपोड्स है ना, अर्थवॉर्म भी है, अर्थवॉर्म भी, ये सब डिकम्पोजर्स हैं, ये सब डिकम्पोजर्स हैं। और भी हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम को हम लोग दो चीजों में बांट सकते हैं, वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन का इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम। दूसरा क्या, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसके 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड्स, तीसरा डेजर्ट्स, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के भी 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला फ्रेश वाटर, दूसरा सलाइन वाटर, तीसरा मैरिन वाटर। फ्रेश वाटर में क्या आ गया, लेक, रिवर्स, ठीक है। सलाइन वाटर में क्या आ गया, साल्ट लेक, है ना, जो नमक का लेक होता है। मैरिन वाटर, ओशियंस, सीज, मैरिन वाटर में आ गया। अब हम लोग देखेंगे होमोस्टेसी। ये समझ में आया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, बहुत सिंपल। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या आ गया, फ्रेश वाटर, सलाइन एंड मैरिन वाटर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग होमोस्टेसी। होमोस्टेसी क्या है, अब क्या होता है कि देखो कि जो नॉर्थ पोल है, मान लो एक आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक रीजन जो है, वहाँ पे बहुत भयंकर ठंड पड़ती है। तो वहाँ के जितने भी जानवर होंगे उन पे क्या होता है, फर लगा होता है, फर लगा होता है उनके शरीर पे, क्या लगा होता है, फर, ठीक है। अब हाथी भी मैमथ होते थे, मैमथ अब खत्म हो गए, पहले मैमथ हुआ करते थे, बहुत लंबे चौड़े हाथी होते थे। उन पे पूरे बाल थे, फर मतलब बाल, पूरे शरीर पे बाल होता। इवन पोलर बियर जो होता है वो इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन लैंड बियर। जो हमारे यहाँ भालू होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहाँ के भालू के बहुत मोटी चमड़ी होती है, बहुत मोटी खाल होती है, और बहुत ज़्यादा शरीर पे फर होता है। फर मतलब बाल होते हैं। वो बाल क्या करता है, वो एक्चुअली बाहरी ठंड से उसका बचाव करती है। अब पोलर बियर को अगर मैं यहाँ लाया इंडिया में, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल लैंड है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे गर्म है, गर्म प्रदेश है, गर्म देश है एज कम्पेयर टू आर्कटिक रीजन। अब पोलर बियर यहाँ आएगा तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, गर्मी से मर जाएगा। और यहाँ का अगर बियर वहाँ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही गया वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो जम जाएगा यहाँ का बियर। इसलिए क्योंकि यहाँ के बियर की चमड़ी जो है वो पतली है एज कम्पेयर टू वहाँ के बियर की, पोलर बियर की। यहाँ के बियर के शरीर पे उतने फर हैं ही नहीं जितने कि पोलर बियर्स के बॉडी पे हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं इन सब चीज़ों से, कि ये इकोसिस्टम अपने आप को स्टेबल खुद से कर लेता है। इस इकोसिस्टम के पास इतनी शक्ति है कि ये खुद ब खुद ही
खुद को स्टेबल कर लेता है। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में ये बीर आ गए, ये भालू आ गए, हाथी आ गए, मैमथ उधर, इधर हाथी है, यहाँ का हाथी वहाँ जाएगा, वहाँ जाके जम जाएगा, मैमथ यहाँ आएगा तो गर्मी से मर जाएगा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। हमारा नेचर माँ की तरह है। माँ सबको जानती है किसको क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसे साल के रूप में फर दे दिया, मोटी चमड़ी दे दी। यहाँ गर्मी बहुत है तो साल हटा लिया, चमड़ी पतली कर दी ताकि कम गर्मी लगे। समझ में आएगी बात? तो इस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रिमेन इन स्टेबल फॉर्म, टू अटेन इज स्टेबल फॉर्म is called homeostasis. Is called homeostasis. Is called homeostasis. Homeostasis. इसका डेफिनेशन क्या है? सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रिमेन व्हाट? स्टेबल, टू रिमेन बैलेंस, टू रिमेन इन बैलेंस फॉर्म। ये थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, इकोसिस्टम खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है कुछ वक्त के बाद। इसे कहते हैं हम लोग होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस, होमोस्टैसिस। ठीक है। अब आओ इकोटोन। इकोटोन क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे इकोटोन। इकोटोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ इकोटोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम्स। इकोटोन इज अ जोन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम। इज अ जोन ऑफ कॉम्बिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। is a zone of combination of two or more ecosystems. For example, mangrove forest. अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीनी क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, जमीनी क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, या फिर जमीनी क्षेत्र और नदी के किनारे, नदी रिवर एम्बैंकमेंट। ठीक है, जमीनी क्षेत्र या नदी, उन दोनों के बीच का क्षेत्र मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ हो जाएगा। जमीनी क्षेत्र या फिर समुद्री क्षेत्र, उन दोनों के बीच में मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या है? ये इकोटोन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? इकोटोन है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, इसका एक गुब्बारा पकड़ लो और दूसरा एक्वाटिक या मैरीन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम पकड़ लो। उससे कुछ भी हो सकता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, मैरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है, सलाइन इकोसिस्टम भी हो सकता है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं इकोटोन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इकोटोन। और यही है मैंग्रोव। इसी में होता है क्या? मैंग्रोव। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच का जो फॉरेस्ट पे प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट पे प्रोड्यूस हुआ एक नया इको छोटा सा सिस्टम प्रोड्यूस हुआ, एक नया छोटा इकोसिस्टम प्रोड्यूस हो गया, जो ही कॉम्बिनेशन है दोनों का, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी और एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो छोटा सा नन्हा सा इकोसिस्टम। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इकोटोन कहते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी, एक्वाटिक इकोसिस्टम का। अब इस इकोटोन में, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होगा? इसके भी प्रॉपर्टीज होंगे, इसके भी ऑर्गेनिज्म होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म होंगे और एक्वाटिक इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या है? इनके कैरेक्टरिस्टिक भी मैच करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी जानवर मिलेंगे और एक्वाटिक सिस्टम के मछली भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। अब बहुत बार क्या होता है कि इसी इकोटोन में
बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है कि कौन सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। सर्वाइवल का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपटीटर्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ कंपटीटर्स ज़्यादा होगा तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो एक जोन ऑफ टेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दूसरे की पॉपुलेशन घटेगी। अगर एक डोमिनेंट होगा तो एक अंडर डोमिनेंट होगा। समझ रहे हो? रिसोर्सेस तो कॉमन है, रिसोर्सेस तो नॉर्मल, ये कांस्टेंट है। मान लो यहाँ का जो रिसोर्सेस जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, वो दोनों के लिए कांस्टेंट है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी जानवरों के लिए कांस्टेंट है और एक्वाटिक इकोसिस्टम के भी जानवर के लिए कांस्टेंट है। अब फाइट किसके बीच में होगी? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जानवरों और एक्वाटिक इकोसिस्टम के जानवरों के बीच में। अब जो जीतेगा उसका ये रिसोर्सेस, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और खासियत है कि इस जोन में अगर मान लो किसी एक स्पीसी का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, अगर एक स्पीसी का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे स्पीसी का क्या होगा? सेकेंड स्पीसी का क्या होगा? पॉपुलेशन घटेगा। आई बात समझ में? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। एक का बढ़ेगा तो दूसरे घटेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। एक का पॉपुलेशन घटेगा तो दूसरा का पॉपुलेशन घटेगा, क्योंकि कंपटीशन इतनी है, रिसोर्सेज एक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो एक डोमिनेंट होगा तो दूसरा अंडर डोमिनेंट हो जाएगा, दूसरा अंडर डॉग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नीच। तो इकोटोन समझ में आ गया? इकोटोन इज अ जोन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम्स। ठीक है, अब आता है नीच, कि नीच क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीच, ये भी इंपॉर्टेंट है नीच। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है, या फिर ये कह लो एक यूनिक प्लेस ऑफ ऑरिजिन होता है। और वैसे ऑर्गेनिज्म वहीं पे रहते हैं, वहीं पे मरते हैं, वहीं पे जीते हैं। उसके बाहर तुम ले जाओगे या फिर उस फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन करवाओगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग नीच। नीच मतलब क्या होता है? अ नीच इज द यूनिक फंक्शनल रोल और place of or a unique is a unique functional role or unique place of living in an ecosystem. ठीक है, प्लेस ऑफ स्पीसीज और यूनिक प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है। जैसे डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है
कि वो डिकम्पोज करेंगे। लायंस का क्या होता है यूनिक फंक्शनल रोल, कि वो लिमिटेड रखेगा। जो हर्बीवोर्स हैं जंगल में, नहीं तो सारा पेड़ पौधा कौन खा जाएगा, हर्बीवोर्स खा जाएंगे। इसलिए लायंस होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ताकि हर्बीवोर्स की संख्या को लिमिट में रखें। तो ये उनका काम है एक्चुअली, ठीक है। दूसरा कि हर ऑर्गेनिज्म का एक प्लेस ऑफ ऑरिजिन भी होता है, प्लेस ऑफ स्पीसीज भी होता है, जहाँ उसको अगर मॉन्टेनियस पकड़ लो, अगर वही वापस एग्जांपल ले लो पोलर बियर का। पोलर बियर को अगर हम इंडिया में लाएंगे तो वो मर जाएगा। उसका नीच क्या है, आर्कटिक रीजन। पोलर बियर का नीच क्या है, आर्कटिक रीजन, इंडिया नहीं है। इंडियन बियर का नीच क्या है, इंडियन रीजन, आर्कटिक रीजन नहीं। इंडिया के भालू को अगर ले जाओगे तुम आर्कटिक रीजन में तो वो वहाँ जाके मर जाएगा। आगे बात समझ में। तो नीच क्या है, इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और यूनिक प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद कि अगर आप कंजर्वेशन, कोई भी गवर्नमेंट कंजर्वेशन पॉलिसीज लाती है तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का नीच देखती है कि इस ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या होता है। जो फंक्शनल रोल होगा वो वैसा ही इन्वायरमेंट में रखेंगे ताकि वो ऑर्गेनिज्म वही फंक्शन करे, ठीक है। अगर तुम शेर को बिल्कुल ऐसी जगह रख दो जहां बस पेड़ पौधे हैं, कोई डियर नहीं है, कोई हर्बीवोर्स नहीं है, रैबिट नहीं है, तो शेर क्या करेगा, मर जाएगा वहां जाके। वो पेड़ पौधा खाएगा ही नहीं। वो क्या खाएगा, वो डियर खाता है, रैबिट खाता है, मांस खाता है, ताज़ा मांस खाता है। तो शेर वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाया। बहुत बार चिड़ियाखाना में बहुत सारे जानवर बीमार हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, मर भी जाते हैं बहुत सारे चिड़ियाखाना, जू में। क्यों? क्योंकि उनका नीच चेंज हो जाता है। उनका नीच क्या होता है, खुला जंगल, खुले जंगल में रहते हैं वो। अचानक से उनका प्लेस ऑफ स्पीसीज चेंज हो जाता है, वो जू में आ जाते हैं, एक लिमिटेड जगह पे रहते हैं, बंद से हो जाते हैं। तो वो इतने इनएक्टिव हो जाते हैं कि एक समय में वो ख़त्म हो जाते हैं, लेथार्जिक लाइफ हो जाती है उनकी। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट अगर कंजर्वेशन करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मान लो कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, तो अगर उसका कंजर्वेशन करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या देखती है कि उस स्पीसीज का नीच क्या है। क्योंकि एक बार नीच पे काम सही से कर लिया तो वो ऑर्गेनिज्म कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कितने सारे नीच हैं, टाइप्स ऑफ नीच क्या है, टाइप्स ऑफ नीच जिसको गवर्नमेंट ध्यान में रखती है, तो वो है हैबिटेट नीच, दूसरा हैबिटेट नीच मतलब कहाँ वो रहता है, कहाँ वो रह मतलब कहाँ पे वो एक्चुअली में खुश रहता है, हेल्दी रहता है। रह तो कहीं भी लगा लेकिन मर जाएगा, लेकिन कहाँ वो हेल्दी रहता है, कहाँ पे वो खुश रहता है, तो हैबिटेट नीच, प्लेस ऑफ सर्वाइवल, जहाँ पे वो जिंदा रह सकता है। दूसरा फूड नीच, वो क्या खाता है। अब शेर को तुम घास फूस दोगे तो वो तो मर जाएगा, वो खाएगा ही नहीं, फूड नीच। व्हाट इट ईट्स, ठीक है, फूड नीच। तीसरा है रिप्रोड्यूस नीच, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस। ये बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ एंड वाई इट रिप्रोड्यूस, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, कि कौन से समय में, मानसून में रिप्रोड्यूस करते हैं कि ठंड में करते हैं कि गर्मी में करते हैं, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोड्यूस नीच भी जानना जरूरी है। फोर्थ इज फिजिकल एंड केमिकल नीच, फिजिकल एंड केमिकल नीच। अब फिजिकल एंड केमिकल नीच मतलब
वो कितने टेम्परेचर पे रहता है। मान लो पोलर बियर है तो उसे -20 से 30 डिग्री तो चाहिए। अब यहाँ पे आके 40 डिग्री में आ जाएगा इंडिया में, पोलर बियर तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फिजिकल एंड केमिकल नीड्स भी जानना ज़रूरी है, ताकि आपको क्या मालूम चले कि वो कितने टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे रहता है। दूसरा, लैंड शेप क्या होता है, क्या होना चाहिए। अब पोलर बियर बर्फ के बीच में रहता है। अब उसे ज़मीनी स्थल पर लेता होगा, ज़मीन पर खड़ा कर दोगे तो रह नहीं पाएगा। वो गुफाओं में रहने वाले जो जानवर हैं उसे ज़मीन पर लेता हो वो ख़त्म हो जाएंगे, जो पेड़ पर रहते हैं उन्हें ज़मीन पर लेता हो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लैंड शेप पता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए। अब इंडिया में ह्यूमिडिटी इतनी है कि इंसान ख़त्म हो जाते हैं। अब तुम ठंड प्रदेश के जानवरों को यहाँ लेते आओगे तो उमस में ही मर जाएंगे। इसलिए ह्यूमिडिटी भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बायोम पढ़ेंगे। बायोम, अब बायोम में एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से ही आपको आधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक पिरामिड बनाऊंगा। उस पिरामिड में हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो टेम्परेचर गर्म होता जाएगा। उस पिरामिड से में जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो रेन, बरसात बढ़ जाएगा, बारिश बढ़ जाएगी। और जैसे ही हम लोग लेफ्ट आएंगे तो सुखाड़ आ जाएगा, बारिश ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिरामिड है। ये पिरामिड है। ठीक है, अगर हम लोग इधर गए, इधर क्या है, वेट, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा है इधर, वेट। यहाँ पे क्या है, ड्राई, बहुत ज़्यादा सुखाड़ है। ऊपर हम लोग जाएंगे कोल्ड, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कोल्ड, नीचे आएंगे वार्म, गर्मी बढ़ी। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल यहाँ आए वेट वाले कंडीशन पे, ठीक है, बिल्कुल हम लोग यहाँ आते हैं वेट वाले कंडीशन पे, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, नीचे है हम लोग वार्म, गर्म, बिल्कुल गर्म और बारिश बहुत, तो क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ क्या बनेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और हम बीच में जाते हैं, मतलब बारिश मीडियम होगी, तो जैसे हम लोग बीच में जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, बारिश उतनी नहीं है पर गर्मी तो है। बारिश उतनी नहीं है पर गर्मी है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नीचे हैं। गर्मी का रेंज वही है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितना गर्म होता है उतना ही गर्म यहाँ भी है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल ये क्या बन जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब बारिश अब बिल्कुल नॉर्मल सी है, न ज़्यादा न कम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा उमस होती है ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि गर्मी है और बरसात है। बरसात मीडियम है और गर्मी बहुत है, तो क्या उमस हो जाएगा। उमस सबसे ज़्यादा तो यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा उमस पाया जाता है यहाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में भी कम नहीं पाया जाता, यहाँ भी ह्यूमिडिटी बहुत होती है। अब हम अपन देखेंगे इसके बाद क्या आता है, सवाना। गर्मी बहुत है, बरसात मीडियम हो चुकी है, मीडियम, इसलिए सवाना, सवाना, सवाना। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड होता है, बहुत लंबे लंबे ग्रासलैंड्स होते हैं।
सवाना। इसके बाद और अपन जाएंगे तो यहाँ पे आए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, मतलब गर्मी बहुत है, घास भी है, बारिश बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो गई है बारिश यहाँ पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब ड्राई, यहाँ तो बारिश तो होगी नहीं, तो क्या हो गया, बिल्कुल वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट कह लो, हॉट डेजर्ट। ठीक है, अब ऊपर आएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हुआ, ऊपर आए हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनता है, ट्रॉपिकल वेट तो है, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस, बिल्कुल वही सेम चीज़ है, थोड़ी सी बारिश, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ी सी बारिश कम है एज कम्पेयर टू वेट यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, ट्रॉपिकल, यही सेम चीज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस, बारिश भी कम गर्मी भी कम, तो क्या हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद ये ग्रासलैंड बना वापस से, क्योंकि ठंडा है और बारिश लिमिटेड हो चुकी है यहाँ पे, तो क्या सवाना नीचे था, क्योंकि थोड़ा सा गर्म था, ये थोड़ा सा ठंडा हुआ, सेम बारिश का लगभग अमाउंट वही है जो कि सवाना में है, तो यहाँ क्या बना, प्रेरी। ये ग्रासलैंड का एक रूप होता है प्रेरी, मैं बताऊंगा आगे क्या है। ठीक है, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, डेजर्ट तो है क्योंकि बारिश तो बिल्कुल नहीं है, ड्राई है, ग्राफ से देखें तो इधर क्या होगा, बिल्कुल ड्राई है, बारिश, पानी तो है ही नहीं, बारिश तो है ही नहीं, लेकिन अब उतना गर्म नहीं है जितना कि बाद बाकी हॉट डेजर्ट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इसके बाद बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, बारिश भी मीडियम और ठंड है, ठंड बहुत, बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, बताऊंगा आगे क्या है। ठीक है, और सबसे ऊपर बीच में क्या है, टुंड्रा, इसके ऊपर क्या है, टुंड्रा, और इसके ऊपर क्या है, पोलर, सब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब बायोम है क्या एक्चुअली, बायोम का डेफिनेशन क्या है। बायोम, अगर हम बायोस्फेयर को अगर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, बायोस्फेयर को हम लोग डिफरेंट रीजन्स में तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन, है ना, टेम्परेचर, क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन। अगर इन तीनों के बेसिस पे अगर हम बायोस्फीयर को डिफरेंट रीजन्स में तोड़ते हैं, तो उन रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोम। और हर बायोम का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जैसे कि पोलर, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उससे कम ठंड टुंड्रा में पड़ेगा, उसके नीचे बोरियल फॉरेस्ट, वहाँ और कम पड़ेगा ठंड। कोल्ड डेजर्ट में उससे ज़्यादा, उससे और ज़्यादा कम ठंड पड़ेगा। हॉट डेजर्ट में तो ठंड है ही नहीं, गर्म है, बिल्कुल गर्म है। तो क्या किया हमने, टेम्परेचर से डिवाइड करा, रेनफॉल से डिवाइड किया, वेट, इधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ट्रॉपिकल डेजर्ट उससे कम, सवाना में उससे भी कम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में उससे भी कम, और डेजर्ट में तो बारिश है ही नहीं, ड्राई है। तो ऑन द बेसिस प्रेसिपिटेशन डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, डिवाइड किया हमने, ग्राफ बनाया बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब बायोस्फीयर को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं बायोस्फीयर को डिफरेंट रीजन्स में, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, अब मैं रीजन बताऊंगा, रीजन इन द सेंस किस किस क्षेत्र में है ये, किस किस क्षेत्र में ये पोलर बायोम है, टुंड्रा बायोम है, बोरियल फॉरेस्ट बायोम है, ये सब बताता हूँ। तो अब देखो आप, पोलर, तो पोलर कहाँ पे है, बिल्कुल अंटार्कटिका रीजन में और प्लस आर्कटिक रीजन में।
टुंड्रा कहाँ है? टुंड्रा कहाँ है? हल्का सा नीचे, मतलब ये बिल्कुल साउथ मोस्ट एंड नॉर्थ मोस्ट, मतलब आर्कटिक के रीजन के पास ही टुंड्रा, थोड़ा सा नीचे आ गए जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइफ बढ़ गई, ठीक है। सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स वही आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के पास वाला क्षेत्र टुंड्रा रीजन में आ गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे। फिर आ जाओ ताइगा, इसको हम लोग फिर आ जाओ ताइगा, बोरियल फॉरेस्ट को ही हम लोग ताइगा भी बोलते हैं, ताइगा। अब ताइगा कहाँ पाया जाता है भाई? तो नॉर्दर्न यूरोप, में, एशिया में, नॉर्दर्न यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, बोरियल फॉरेस्ट या ताइगा पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे कौन सी क्लाइमेट होती है? मॉडरेट क्लाइमेट, ठंड ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है। अब देखो डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं, ये वाला डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर इसको पकड़ लो, ये डेसिडियस, ये दोनों डेसिडियस फॉरेस्ट, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो ये पाए जाते हैं सेंट्रल एंड साउथ यूरोप, और कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, में पाए जाते हैं। चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, है ना, ये ट्रॉपिकल डिसीडियस पाया जाता है सेंट्रल साउथ यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, चाइना में, जापान में, न्यूजीलैंड में। अब देखो सवाना, सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, सवाना, ठीक है। इस सवाना ग्रासलैंड में चीता, शेर बहुत पाए जाते हैं। यही घूमने जाते हैं जितने भी टूरिस्ट हैं, वो सवाना ग्रासलैंड को ही घूमने जाते हैं। और पूरी डिस्कवरी पे कभी कभी आती है अफ्रीकन लायन, बहुत फेमस है, वो सवाना ग्रासलैंड में ही जाते हैं घूमने, क्योंकि लायन, शेर, चीता, इन लोगों के लिए ग्रासलैंड्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ग्रासलैंड्स में ये छिप सकते हैं आसानी से और अपने प्रे पे अटैक कर सकते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड इसलिए बहुत ज़्यादा ही इनका एक नीच कह लो, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, लायंस, चीता, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो छिप सकते हैं और वहाँ पे अटैक कर सकते हैं अपने प्रे पे। उसके बाद आओ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये यूक्रेन, नॉर्थ अमेरिका में भी, ये यूक्रेन, ताजिकिस्तान के पास ही है यूक्रेन, ऊपर में, सॉरी उज्बेकिस्तान है वो, ये यूरोपियन कंट्री है यूक्रेन। नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्रासलैंड। क्या पाया जाता है? ग्रासलैंड, ठीक है।
अब इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, नॉर्थ अमेरिका और जहाँ जहाँ ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम बारिश होती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में बारिश बहुत कम होगी भाई, बहुत कम। ठीक है, इसके बाद आता है डेजर्ट। डेजर्ट में तो पता ही, बारिश तो होती है नहीं। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट कहाँ का है? अफ्रीका में है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया में, इंडिया में थार डेजर्ट है, इंडिया। ठीक है, बहुत कम बारिश होती है, बहुत लो वेजिटेशन भी है यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? लो रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल, लो वेजिटेशन, है नहीं कुछ यहाँ पे, कुछ है नहीं सिवाय खजूर के। अब इतना समझ में आया बायोम। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक रह गया है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर कुछ नहीं है, खत्म ही कर देता हूँ क्लास। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये पकड़ लो एटमॉस्फेयर। अगर सिर्फ एटमॉस्फेयर रहेगा, बस हवा ही रहेगी, ना पानी होगा ना जमीन होगा, तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाइड्रोस्फेयर, अगर मान लो बस पानी ही है, हवा है ही नहीं, ना जमीन है, तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरा लिथोस्फीयर, मान लो सिर्फ जमीन है, ना पानी है ना हवा है, तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लाइफ कब एग्जिस्ट करेगी? जब एटमॉस्फेयर भी हो, हवा भी हो, पानी भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और जमीन भी हो, लिथोस्फीयर भी हो। इसलिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर is the combination of atmosphere, hydrosphere and lithosphere where life originates, where life begins, is called biosphere. ठीक है, ठीक है, इसे ये क्लास खत्म होती है। अगली क्लास हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट की।